Shri Ganpate Namah. Swagatam everyone, respected chief guests, dear parents, teachers and my dear friends. I Rajendra Singh of grade 3 of grade 4 warmly welcome you all to Aditi Silver Bell School on this auspicious celebration dedicated to the epic of epics, the Ramayana. This timeless tale embodies dharma, courage, devotion and the victory of good over evil. Do you know, रामायण को अगर हम एक शब्द में समेटना चाहें तो वो शब्द होगा सरल। स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। ये तीनों मिलकर बनाते हैं सरल और ये हमें बताते हैं कि जब जीवन में इनका स्मरण हो तो हर कठिनाई भी सरल हो जाती है। True, from them we learn that simplicity, truth and love are the greatest strengths. And today's program will take us through stories that inspire us to live with truth and faith.
चलिए हम सब इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। In our culture, we say Athithi Devo Bhava. A guest is like a god, and with this, we express our heartfelt gratitude to our honorable chief guest, Ma'am Rajni Shekhawat. Your presence adds grace and inspiration to this celebration. Now, I would like to invite Ma'am Aditi to kindly present a token of gratitude to our chief guest. With this, we move forward to the auspicious moment of lamp lighting. दीप प्रज्वलन हमारी परंपरा है। ये अंधकार को मिटाकर ज्ञान और उजाला फैलाता है। And for this, we now request our honorable chief guest to kindly come on the stage and join our principal ma'am and academic head for the lamp lighting ceremony. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय। Thank you, ma'am, for lighting the lamp of knowledge and goodness. And now, it is our honor to invite our respected principal, Ma'am Aditi, who always guides us like a shining light. Ma'am, we request you to kindly share your inspiring thoughts with us. A very good evening to everyone present here, respected chief guest, my dear parents, and my guests. First of all, I would like to start by praying gratitude to all my teachers and management who are running endlessly, tirelessly for this function, Ramayan. Secondly, I would like to pay gratitude to all the parents who cooperated with us thoroughly by sending children on time, taking them back. I know it's a lot of work, but thank you once again. Because of you, it has made possible. Otherwise, we wouldn't have been able to put up such a function. Thirdly, I would like to pay gratitude to my teachers and my students who have shown their endless zeal and zest in putting up the function. The way they were carrying studies, academics, all together with this curricular activity, today you will see a glimpse of it here. Now with this, I would like to pay gratitude to our respected chief guest, Ma'am Rajni Shekhawat. She is a well-known figure in the field of education because she has worked very hard in bringing up the education, the fundamental basics of education, and make education available for girls and underprivileged. So I would like to request all of you to kindly pay a big round of applause in welcoming her. Thank you so much. Thank you so much, because she has been busy because of the inspections and the examinations and the competitive examinations going on, but still she accepted our invitation and she made here. She has been associated with the field of education since 2004, and she has served in education on various posts including Chief Resource Person, Headmistress, Principal, and now she is the District Education Officer in CBEO. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation. And apart from education, she has bagged many accolades and awards like Best Teacher Award, National Award for Teachers, etc. Plus, I have been following her since a very long time, and she's very, very, very good at culinary arts and baking. So, because of her dynamic personality, I thought that she will be an apt guest for our today's function, as her words will motivate us and of course my students.
अब बात करते हैं रामायण की। तो अगर रामायण को मैं सिर्फ एक शब्द में समेटना चाहूँ, रामायण के जितने भी किरदार हैं, राम, रावण, सीता, लक्ष्मण, अगर सिर्फ एक शब्द में मैं उनको समेटना चाहूँ तो वो होंगे इमोशंस। अगर इमोशंस ही नहीं होते तो रामायण ही नहीं होती। इमोशन नहीं होते तो दशरथ जी बहुत प्रसन्न होकर कैकई को वरदान नहीं देते। अगर इमोशंस नहीं होते तो कैकई वरदान में राम का वनवास नहीं मांगती। अगर इमोशंस नहीं होते तो राम वनवास नहीं जाते। इमोशंस नहीं होते तो सीता जी बहकावे में आके लक्ष्मण रेखा पार नहीं करती। तो सारी जो रामायण है वो इमोशंस के ऊपर ही है। और इसीलिए शायद मेरा स्कूल इसलिए यूनिक है क्योंकि हम यहाँ पे यही सिखाते हैं, इमोशंस, कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि बचपन से भी नहीं, जब से माँ के गर्भ में बच्चे का आगमन होता है तब से लगाकर 7 साल की उम्र तक 95% तो ब्रेन डेवलप हो ही चुका होता है, और वो सब बेस्ड होता है इमोशंस पे, जो आपके आगे आने वाली लाइफ को चलाएगा। तो जैसा कि कहा जाता है कि राम और रावण हमारे अंदर ही बसते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि रावण को हम नेगेटिव इमोशन से डिनोट करते हैं और राम को हम पॉजिटिव इमोशन से डिनोट करते हैं। और जब हमें क्रोध आता है, जब ईर्ष्या होती है या इस तरीके का कोई नेगेटिव इमोशन उभर के बाहर आता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और हम उससे ट्रिगर हो जाते हैं और उसी से रिएक्शन देते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि इस टाइम पे आप अवेयर हों, और वो अवेयरनेस कहाँ से आएगी? कॉन्शियस अवेयरनेस आती है ध्यान से, मेडिटेशन से। तो हमारी ये पहल रहती है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के बच्चों को प्रॉपर मेडिटेशन करवाएं, जो हम करवाते भी हैं, जिसका थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट दिखता भी है। वो अब नहीं दिखेगा तो थोड़े टाइम बाद में दिखेगा, लेकिन दिखेगा ज़रूर। तो अंदर के मेडिटेशन करने से अंदर का राम जागने लगता है और रावण सुस्त होने लगता है। तो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इन बच्चों को भी बोलती हूँ कि आप रेगुलर मेडिटेशन करें। तो अगर आप लोग सिर्फ इनको थोड़ा सा पहल करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे कि 5 मिनट के लिए रात को सोने से पहले चलो हम भी बैठते हैं, आप भी बैठो, थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं। आप सोच नहीं सकते आप बच्चों को किस तरीके का गिफ्ट दे रहे हैं, जो आगे फ्यूचर में उनको कहाँ पे लेके जाएगा। इसका आप जब वापस से पीछे देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, मेरी कराई हुई मेहनत सफल हुई। तो इसी के साथ में हम शुरू करते हैं रामायण का फंक्शन। बच्चों ने इस बार हमने कोशिश करी है कि नर्सरी के बच्चे भी स्टेज पे लेकर आएँ। तो नर्सरी से लगाकर ग्रेड 5 तक के बच्चे हमारे यहाँ पर आएंगे, आपके सामने प्रस्तुति देंगे, उनका मनोबल बढ़ाएं तालियों से, हंस के। और एक और चीज़, जाने से पहले सिर्फ मैं ये बात कहना चाहूँगी कि रामायण में ना हर किरदार की अपनी अहमियत है। भले ही वो रावण हो या कोई सिपाही हो, वानर सेना हो या हनुमान हो। तो बच्चों को हमेशा ये समझाना है कि कोई भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। ये कैरेक्टर नहीं होगा तो रामायण नहीं चलेगी, और आप देख लीजिए नहीं चलेगी। तो बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें और ध्यान की तरफ प्रेरित करें। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब पधारे, दिल से आभार। अब आप बैठ के रामायण को अच्छे से एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। For your kind and motivating words. Our culture always begins with a prayer and devotion. To continue this pure spirit, our children will now present a beautiful Vandana dance, a graceful dance offered to God. ये नृत्य भगवान को समर्पित है। जैसे घर में पूजा से शांति आती है, वैसे ही ये नृत्य हमारे दिलों में सुकून भर देगा। प्लीज वेलकम आवर चिल्ड्रन विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे शिशिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि कर्षरते भुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वै जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभगञ्जिनि कैटभगञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते गजाधिपते भृगुगजगण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते What a graceful and soulful performance. Thank you, dear students, for filling the whole stage with energy, devotion and positivity. मैम, आपको पता है यहाँ अदिति सिल्वर बेल स्कूल में हमें सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जीवन के संस्कार भी सिखाए जाते हैं। यहाँ हम IQ पर ही नहीं बल्कि EQ पर भी ध्यान देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, यह नर्सरी से 5th तक के बच्चों को गीता ज्ञान भी दिया जाता है। जी हाँ, गीता में श्लोकों के साथ साथ हम हमारे कल्चर, वैल्यूज एंड माइथोलॉजी के बारे में भी पता चलता है एंड इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग व्हेन देयर आर स्टोरीज अटैच्ड टू इट। इन कहानियों से हमें सच्ची भक्ति और जीवन के मूल्य समझने को मिलते हैं। इसी की एक झलक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। लेट अस ऑल वेलकम द यंगेस्ट मेंबर क्लास KG एंड प्रेप ऑफ अदिति सिल्वरबेल स्कूल, जो आपके सामने सुंदर श्लोक प्रस्तुत करेंगे और इस माहौल को और भी पवित्र बना देगा। प्लीज वेलकम देम विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज KG क्लास के बच्चे आपके सामने दैनिक जीवन से जुड़े कुछ श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये श्लोक हमारे जीवन को न केवल सुंदर और सरल बनाते हैं बल्कि इसे हमारी संस्कारों से भी जोड़ते हैं। सुबह उठते ही हम करावलोकन करते हैं। धरती माँ तुम गुणों की खान, धरती माँ तुम बड़ी महान, धरती माँ में समाया सारा संसार। धरती माता को प्रणाम करते हुए वैष्णवी
रोज हरिद्वार तो नहीं जा सकते, तो हम घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर और गंगा मैया का नाम लेकर हम घर पे गंगा स्नान कर सकते हैं। स्नान मंत्र: ब्रह्मा स्वरूपिणी विष्णुपादोदकी जटा शंकरी यान्वी भागीरथी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए एहि सूर्य सहस्रांश तेजोराशे जगत्पते अनुकंपया भक्तया गृहाणाभ्यं दिवाकर गृहाणाभ्यं दिवाकर। तुलसी जी में जल देते हुए तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनप्रिये नारायण मनप्रिये। भोजन मंत्र: पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरता वैष्णामि प्रयतात्मनः वैष्णामि प्रयतात्मनः। रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आनंद आनंद है आनंद में रहेंगे। पहले क्या हुआ पहले क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे। आनंद है आनंद में रहेंगे। पहले क्या हुआ पहले क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे उसकी चिंता न करेंगे। नारायण नारायण नारायण। अब आपके सामने प्रेप क्लास के बच्चे एक श्लोकी रामायण और राम धुन भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अदोराम तपोवनानि वदनम् अद्भुतमेकं काञ्चनं एरनटवायुहरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुर्याहनं पश्चाद्
devotion has no age. Even the smallest voices can spread the biggest blessings. Acha, do you all know that our tiny shining stars are not just good at reciting shloks, they are also full of joy and talent in dancing. बचपन की यही मासूमियत तो हमें याद दिलाती है कि खुशी छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। आज ये बच्चे अपने नृत्य से हमें वही सरल और प्यारी मुस्कानें लौटा देंगे। So let's sit back, open our hearts and feel the magic of Ramayana together. जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कभी बहुत डर लगता है और जब मुझे डर लगता है तब मैं अपनी मम्मी, दादी, पापा या दादा के पास जाकर उन्हें जोर से हक कर लेता हूँ। और जब घर पर कोई ना हो तब
तब क्या करना चाहिए समझ नहीं आता, तुम ही बता दो। अरे दिमाग पर जोर डालो, तुम्हें पता है तुम रोज वही चीज करते हो। चलो एक हिंट देता हूँ, उसमें 40 चौपाइयाँ हैं, श्री राम का नाम 11 बार लिया गया है और हनुमान जी का नाम 108 बार। कुछ याद आया? हाँ याद आ गया, मुझे तो याद आ गया, पर क्या आप लोगों को पता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नहीं, क्या आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला? तो चलिए आप लोगों को हम अपनी प्रस्तुति के द्वारा ही बताते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुबर विमल जसु जो नायक फलचारि मोतीहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजियार। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन
powerful. I have literally got goosebumps. Yes, the atmosphere is charged with energy and positivity, and I can feel that divine power in the air. And now it's the time for the moment that everyone has been waiting for, the Ramayana Act. This is not just a play, it's a reminder of values that live in every home and every heart. Respected parents and dear guests, आप लोग इस पंक्ति से तो भली भांति परिचित होंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसका अर्थ है रघुकुल में यह परंपरा रही है कि चाहे जीवन चला जाए लेकिन वचन कभी नहीं टूटता, और यही हमें सिखाता है कि अपने वचनों और वादों को निभाना ही असली चरित्र है। रामायण केवल किताबों में नहीं है, यह हमारे जीवन में भी है। जब हम सच बोलते हैं, जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं, जब से हम बुराइयों के सामने डटकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ से ही रामायण शुरू हो जाती है। Today, through this act, our children will bring alive those very teachings on stage. They will remind us that in the end, अच्छाई की हमेशा जीत होती है. Truth always shines and courage always gives us strength. So let's sit back, open our hearts and feel the magic of Ramayana together. जब जब धरती पर अन्याय का घड़ा भरने लगता है, तब तब ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म लेते हैं। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो युगों युगों तक मनुष्य को मार्गदर्शन देता रहे। प्रस्तुत है आपके समक्ष वाल्मीकि द्वारा रचित एक महाकाव्य रामायण। मैं वाल्मीकि आपके समक्ष रामायण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रामायण भारतीय साहित्य के दो विशाल महाकाव्यों में से एक है। हिंदू धर्म में रामायण का एक विशेष महत्व है, जिसमें हमें रिश्तों के कर्तव्यों को समझाया गया है। रामायण में भगवान विष्णु के राम अवतार को दर्शाया गया है। इसमें 24,000 छंद व 500 सर्ग हैं, जो 7 भागों में विभाजित किए गए हैं। एक समय की बात है, घने जंगलों के बीच अरण्य नामक स्थान पर वाल्मीकि जी का आश्रम था, जिसमें सीता अपने दोनों पुत्रों के साथ रहती थी। उनके दोनों पुत्र लव एवं कुश ने वाल्मीकि जी के सानिध्य में ही शिक्षा एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुमाता, आज लव कुश को वन में गए हुए बहुत समय बीत गया। प्रतिदिन तो वे सूर्यास्त होने से पहले ही आ जाते हैं, लेकिन आज अंधेरा होने को है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। पुत्री, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। देखो, दोनों भाई वो आ रहे हैं। माँ, आपको पता है, आज हमने अयोध्या की पूरी सेना को परास्त कर दिया और उनका घोड़ा बंदी बना लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया? हाँ माँ, आज श्री राम की अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वन में विचरण कर रहा था और उसके माथे पर स्वर्ण तालिका भी थी, जिसमें लिखा था, जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसे श्री राम से युद्ध करना पड़ेगा। माँ, आपने ही सिखाया है, अगर कोई सामने से चुनौती दे तो उसे स्वीकार करके उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन पुत्र, श्री राम तुम्हारे पिता है और अपने पिता के सामने शस्त्र उठाना भी अपराध है। मैं इसका पश्चाताप किस प्रकार करूंगी? ये क्या कह रही है माँ? श्री राम हमारे पिता है? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? माँ, अगर श्री राम हमारे पिता हैं, तो आप वन में क्यों निवास कर रही हैं? और पिताजी महलों में, ऐसा क्यों माँ? ये बात सत्य है पुत्र, राम ही तुम्हारे पिता हैं। लेकिन ये बात अगर मैं तुम्हें पहले बता देता, तो सीता का इस प्रकार वन में रहना मुश्किल हो जाता। पुत्र, अब वो समय आ गया है
जब तुम्हें अयोध्या वासियों के समक्ष जाकर सीता की करुण गाथा गानी है और सीता के आचरण पर लगे दाग को अयोध्या वासियों के आंसुओं से धोना है। हम प्रण लेते हैं, हमारी माता के आंचल पर लगे दाग को हम मिटाएंगे। लव कुश अयोध्या जाकर घूम घूम कर सीता की करुण गाथा सुनाते हैं। यह सुनकर लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने आए। सीता को उसका खोया, माता को उसका खोया, सम्मान दिलाने आए। हम वन के वासी नगर जगाने आए, हम वन के वासी नगर जगाने लव कुश राज दरबार में जाकर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को सुनाते हैं। सीता की करुण गाथा सुनकर सभी का हृदय भर आता है। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। कृप घर जन्मे
बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशल नाम का एक राज्य था, जिसकी राजधानी थी अयोध्या। अयोध्या के शासक का नाम राजा दशरथ था। वे बड़े पराक्रमी व न्यायप्रिय थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा। राजा दशरथ धन धान्य से परिपूर्ण थे, लेकिन उन्हें एक दुख सताए जा रहा था कि उनके कोई संतान नहीं है। उनके बाद इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस समस्या के चलते वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है। मेरा साम्राज्य धन, धान्य, यश, गौरव सभी से परिपूर्ण है। बस एक चिंता मुझे व्याकुल कर रही है। मेरे पश्चात इस कुल का उत्तराधिकारी कौन होगा? इस कुल के गौरव को कौन आगे बढ़ाएगा? क्या मेरे साथ ही इस कुल का अंत हो जाएगा? कृपया इस व्यथा को दूर करने का कोई मार्ग बताएं भगवान। हे राजन, आप निराश ना हो। सूर्य देवता अवश्य ही आपकी इस व्याकुलता को दूर करेंगे, परंतु आपको इसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना होगा राजन, जो कि अथर्ववेद के ज्ञाता ऋषि श्रृंगी द्वारा ही संभव है। जो आज्ञा गुरुदेव। कुछ ही समय पश्चात पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा दशरथ को अपनी 3 पत्नियों से 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है। कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न। पूरी अयोध्या में खुशी का माहौल है। सभी घरों में मंगल गीत गाए जा रहे हैं। अरे अवधपुरी में हाँ बाजे बधैया, बाजे 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 अवध 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 बधैया। राजा दशरथ मगन है कितने, राजा दशरथ मगन है कितने, मगन है तीनों मैया, मगन है तीनों मैया। 4 दिशा से फूल बरसते, 4 दिशा से फूल बरसते, हंसते हैं चारों भैया। बाजे 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 अवध बधैया, बाजे 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 अवध बधैया, बाजे बाजे हो, बाजे 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 अवध बधैया। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े होने लगे
ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। चारों राजकुमार का बाल्यकाल पूरा हो गया। यह देखकर राजा दशरथ ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजा गया। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पाके, पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ। आयुष्मान पुत्र, कहिए क्या समस्या है? हे ऋषिवर, आप अपने गुरुकुल में मेरे पुत्रों को शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें शस्त्र विद्या प्रदान करने की कृपा करें। जो आपके पास ज्ञान का तुल्य भंडार है, उससे उन्हें आत्मसात करें। प्रखर तेजोमयं सूर्यं, रामोऽहं भवद्वंशजं, यशं देहि जयं देहि, सानुजं प्रणमाम्यहम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद मम भास्करम्। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोऽस्तुते। चारों राजकुमार के युवावस्था आने पर एक दिन गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के राज दरबार में पधारे और उन्होंने राजा को राक्षस के अत्याचार के बारे में अपनी व्यथा सुनाई। सूर्य वंश के प्रतापी राजा राजा दशरथ की जय हो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। आपके चरण कमल मेरे इस दरबार में पड़े, ये मेरा सौभाग्य है। कहिए गुरुदेव, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे राजन, राक्षसों ने पवित्र धरती पर आतंक मचा रखा है। ताड़का व उसके पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों द्वारा किए गए यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। अतः यज्ञ की रक्षा के लिए मैं राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने आया हूँ। ऋषिवर, राम लक्ष्मण तो अभी बालक है, वे इन दानवों का नाश नहीं कर पाएंगे।
मैं स्वयं आपके साथ चलकर उन दानवों का नाश कर दूंगा। हे राजन, आप रघुवंशियों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अगर आप राम को भेजना नहीं चाहते हैं तो मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। हे राजन, यदि विश्वामित्र राम को अपने साथ ले जाने आए हैं तो इसका अवश्य ही कोई कारण होगा। आप निश्चिंत होकर राम को उनके साथ जाने की आज्ञा दें। ऋषिवर, क्रोधित न होइए, राम लक्ष्मण आपके साथ अवश्य ही जाएंगे। राम व लक्ष्मण वन के रास्ते महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम के लिए निकलते हैं। रास्ते में महर्षि उन्हें कुछ गुप्त विद्या सिखाते हैं। हे राम लक्ष्मण, मैं आप दोनों को बला अति बला नाम की 2 गुप्त विद्या सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंच जाते हैं। वेदावानस्य महिमा अधोऽध्यायाविष्टपूर्णः पादोऽस्य विश्वभूतानि विवादस्यामृतम्। बंद करो ये उच्चारण, मेरा मस्तिष्क फटा जा रहा है। बंद करो। राम, ये देखो, ये ही है वो ताड़का जिसने पूरे वन में आतंक मचाया हुआ है। राम, लक्ष्मण, तुमने यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों का अंत कर दिया तथा हमारा यज्ञ पूरा हुआ। इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करना चाहता हूँ। विश्वामित्र महामुनि राय, इनके संग चले 2 भाई। कैसे राम ताड़िका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज का कठिन प्रण, सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु उनके राज्य के राजाओं को निमंत्रण दिया, जिसमें कई प्रतापी शौरवीर राजाओं ने भाग लिया। विश्वामित्र को भी सिया स्वयंवर देखने का न्योता मिला। गुरु संग राम लक्ष्मण भी सीता स्वयंवर में पहुंचे। मैं मिथिला नरेश जनक सीता के स्वयंवर में सभी राजाओं व अतिथि गणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में यह घोषणा करता हूँ कि जो भी प्रतापी राजा इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी का मेरी पुत्री सीता संग स्वयंवर होगा तथा सीता उसी के गले में जयमाला डालेगी।
इसे उठाना कोई बड़ी बात नहीं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी उठाकर दिखाता हूँ। इसमें क्या बड़ी बात है, ये शिव धनुष मैं ही उठाऊंगा। राजा जनक, आपने मुझे स्वयंवर में आने का निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। बिना निमंत्रण सभा में आना अशिष्टाचार कहलाता है रावण। यह व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। हम तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आए हैं, अपने बल, पराक्रम व सत्ता का लोहा बनवाने आए हैं। लंका नरेश रावण, अतिथि चाहे बिना बुलाए आ जाए, लेकिन उनका अपमान करना इस कुल की मर्यादा नहीं। इसलिए आप अपने आसन पर विराजमान होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करना रावण का स्वभाव नहीं। तुम चाहो या न चाहो, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर मैं तुम्हारी पुत्री सीता को लंका ले जाऊंगा। रावण, आर्यों और राक्षसों में विवाह संबंध नहीं होता। हम विश्व विजयी हैं। हमारे कार्य में बाधा डालने वाले का हम धड़ से सिर अलग कर देंगे। रावण, तू अपने पिता का सिर काट सकता है, लेकिन शिव धनुष को तू कभी नहीं उठा पाएगा। तुझमें बल है तो उठा शिव धनुष, उठा। बड़ों का कहना न मानने का अंजाम यही है रावण। अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें इसका परिणाम एक दिन भुगतना पड़ेगा। क्या यहाँ कोई भी प्रतापी राजा नहीं जो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या यहाँ कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री सीता संग विवाह कर सके? महाराज, आपका यह कथन अनुचित है। इस सभा में अयोध्या नंदन श्री राम भी विराजमान हैं, जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। शांत लक्ष्मण, शांत। राजकुमार राम, आप आगे आएं और शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं।
राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। राम के राज्याभिषेक की खबर जैसे ही अयोध्या वासियों ने सुनी, घर घर खुशियों का माहौल छा गया। सभी जगह मंगल गीत गाए जाने लगे। तुम्हें पता है, राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। और उन्होंने ये घोषणा राज दरबार में भी कर दी है। अच्छा, ये तो हम अयोध्या वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। श्री राम राजा बनने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मंथरा ने ये बात सुनी, वो दौड़कर कैकई के पास पहुंची। अच्छा, राम का राज्याभिषेक? ये तो बहुत खुशी की बात है। कैकई, तुम बहुत ही भोली हो। अगर राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम दासी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। मेरा भरत ही इस राज्य का राजा बनेगा। धीरे धीरे मंथरा की बातों का असर कैकई पर पड़ने लगा। मंथरा, तुम सच कह रही हो, लेकिन ऐसा क्या करें जिससे भरत को राजगद्दी मिल जाए? महारानी, याद है आपको, राजा दशरथ ने आपको 2 वरदान दिए थे। अब उनको मांगने का सही समय आ गया है। आप पहले वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांगना और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। मंथरा की बात मानकर कैकई कोप भवन में चली जाती है। राजा दशरथ को जब ये पता चलता है तो वे कैकई के पास आते हैं। क्या हुआ रानी, तुम इस कोप भवन में क्यों हो? महाराज, आपको याद है, कुछ वर्ष पहले जब आप युद्ध में घायल हुए थे, तब मैंने आपको बचाया था और उस समय आपने मुझे 2 वचन दिए थे। वो दोनों वरदान आपको मुझे अभी देने होंगे। कैकई, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज, पहला वरदान है, इस राज्य का राजा राम नहीं बल्कि मेरा पुत्र भरत बनेगा। और दूसरा वरदान है, राम को 14 वर्ष के वनवास पर जाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम इसके बदले कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। नहीं महाराज, मुझे तो यही 2 वचन चाहिए। याद रखिए, आप रघुवंशी हैं और रघुवंशी सदैव अपने वचनों पर अडिग रहते हैं। यह बात सुनकर राजा दशरथ मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाते हैं। यह बात पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल जाती है। राम वनवास जाने की तैयारी करते हैं। सीता व लक्ष्मण भी उनके साथ वन में जाने की हट करते हैं। भैया, क्या आपको लोगों का ये विलाप सुनाई नहीं दे रहा? लक्ष्मण, भाई हो तुम मेरे, हिस्सा हो मेरी आत्मा का। तुम चिंता मत करो, शायद यही लिखा है मेरे भाग्य में। यह सत्य है, एक आत्मा है तो दोनों का भाग्य भी एक ही होगा। स्वामी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। जैसे पति का धर्म है, वैसे स्त्री का भी धर्म है कि वह सुख व दुख में अपने पति का साथ निभाए।
भैया मैं भी आप दोनों के साथ वन में चलूंगा। वे तीनों वन के लिए प्रस्थान करते हैं। त्रिभुवन जिन भगवन के बसाए, निर्जन वन में बसने आए। दशरथ सुत रथहीन विचरते, कठिन भूमि कोमल पग धरते। श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। पंचवटी मन भावन उपवन, पंचवटी मन भावन उपवन, जिस उपवन में मन को मोहे, श्री रघुवर की चितवन, मोहक चितवन, सुंदर चितवन। अचानक एक दिन वहां शूर्पणखा आती है। मेरा नाम शूर्पणखा है। विश्वास नहीं होता इस वन में इतने सुंदर युवकों से मेरा सामना होगा। अगर तुमने मुझसे विवाह किया तो ये मेल कितना उत्तम होगा। तुम्हारा प्रस्ताव मैं मान लेता, लेकिन मेरी एक सुंदर सुशील पत्नी है, सीता। तभी शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण पर पड़ती है। हे युवक, तुम भी बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? मैं विवाहित हूँ देवी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। चलो मैं तुम्हें मेरी पत्नी सीता से मिलवाता हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है। ये औरत तुम्हारी पत्नी है? कितनी कुरूप, कितनी भद्दी। तुम इसे छोड़कर मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगी, मार डालूंगी। शूर्पणखा घायल होकर चिल्लाती हुई वहां से भागकर अपने भाई रावण के पास जाती है। भैया, भैया, मेरी नाक काट दी भैया। शूर्पणखा, तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? भैया, ये घाव नहीं, जानबूझकर तलवार से किया गया प्रहार है। अयोध्या के दोनों को मार। राम और लक्ष्मण ने मेरी ये दुर्दशा की है। ये शूर्पणखा की नाक नहीं कटी भैया, ये लंका नरेश रावण की नाक कटी है। इस अपमान का प्रतिशोध उनकी मृत्यु है, केवल मृत्यु। शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण अपने मामा मारीच के साथ पंचवटी पहुंचता है। मारीच सीता को लुभाने हेतु एक अति सुंदर स्वर्ण मृग बनकर कुटिया के सामने से गुजरता है। ओह, कितना सुंदर स्वर्ण मृग है। ये कोई स्वप्न तो नहीं स्वामी? आप इस मृग को मेरे लिए पकड़ेंगे? ठीक है सीता, अगर वो वास्तविक है तो मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता का ध्यान रखना, मैं शीघ्र आता हूँ। श्री राम उस मृग का पीछा करते हुए वन में बहुत दूर निकल जाते हैं।
जैसे ही मृग को तीर लगता है वह अपने वास्तविक रूप में आ जाता है तथा चिल्लाने लगता है, सीता, सीता, लक्ष्मण, लक्ष्मण। सीता यह आवाज सुनकर व्यथित हो जाती है। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। ठीक है माते, लेकिन जब तक मैं लौट कर नहीं आता आप इस रेखा को मत लांघना। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे पुण्यवता स्त्री, हम तुमसे भिक्षा मांगने आए हैं। जी ऋषिवर, मैं शीघ्र ही कुछ लेकर आती हूँ। जब सीता कुटिया के अंदर फल लेने जाती है तब वह ऋषि कुटिया के अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वे इसमें सफल नहीं हो पाते। तभी वह एक षड्यंत्र रचते हैं और दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान अवस्था में विराजमान हो जाते हैं। लीजिए भिक्षा। हे स्त्री, अब मैं ध्यान अवस्था में बैठ गया हूँ, तुम्हें ही स्वयं यहाँ आकर भिक्षा देनी होगी। क्षमा करें ऋषिवर, परंतु मैं ये रेखा पार नहीं कर सकती। देवी, ये घर आए भिक्षुक का अपमान है जो आपको शोभा नहीं देता। या तो मुझे बाहर आकर भिक्षा दें, अन्यथा मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा मुनिवर, क्षमा। यह लीजिए भिक्षा। छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट। कौन हो तुम? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण। रावण अपने पुष्पक विमान में सीता को जबरदस्ती पकड़कर बैठाता है। सीता रोते हुए चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, 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 बचाओ। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तभी गिरिराज जटायु ने देखा और उन्हें बचाने का प्रयत्न किया। छोड़ो इन्हें, कहाँ ले जा रहे हो दुष्ट? छोड़ो, नहीं तो मैं अपने पंखों से तुम्हें घायल कर दूंगा। तेरा इतना साहस, ले। रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख काट देता है। वह घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। सीते, 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 माते, 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 माते। आपकी यह दशा किसने की? किसने आपके ऊपर यह आघात किया है? मैं आपकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोके हुए था। वो पापी रावण सीता को अपने पुष्पक विमान में बैठाकर ले गया है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका प्रभु। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने मेरे पंखों को काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? वो उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। सीता की रक्षा करो पुत्र, रक्षा करो। मैं आपको वचन देता हूँ, जो सीता को उठाकर ले गया है वह मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तुम्हारा संकल्प सफल हो राम। श्री राम और लक्ष्मण
सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। यह बात उनके परम भक्त हनुमान को जब पता चलती है, तब हनुमान उनसे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय श्री राम। आप किस चिंता में खोए हैं प्रभु? मैं अवश्य ही आपकी चिंता को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। हनुमान, लंका का राजा रावण मेरी पत्नी सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। तुम जाकर पता करो सीता कहाँ है। जब तुम्हें सीता मिले तो ये अंगूठी मेरी निशानी के रूप में उन्हें दिखा देना। इसे देखकर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे ही दूत हो। हनुमान अपना विशाल रूप धारण करके समुद्र मार्ग से लंका पहुंचे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, दूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, वरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजे, काले मोज जनेऊ साजे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। महल के पास ही एक सुंदर वाटिका थी। हनुमान उस वाटिका में एक वृक्ष के ऊपर बैठे, तभी उनकी नजर सीता मैया पर पड़ी। प्रणाम माता, मैं श्री राम का परम भक्त हनुमान हूँ। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मेरे श्री राम के दूत हो? ये देखिए माता, यह मुद्रिका। श्री राम ने मुझे आपको दिखाने के लिए यह रघुकुल की निशानी दी है। आयुष्मान पुत्र, चलिए माता, मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। नहीं हनुमान, जब तक मेरे प्रभु श्री राम मुझे लेने नहीं आएंगे, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो आज्ञा माता, मैं आपका यह संदेश श्री राम तक अवश्य पहुँचा दूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं उस दुस्साहसी का चेहरा तो देख लूं। हनुमान जी पूरी अशोक वाटिका में उत्पात मचा देते हैं, वाटिका को तहस नहस कर डालते हैं। यह देखकर सैनिक उन्हें पकड़कर रावण के दरबार में ले जाते हैं। महाराज, इस वानर ने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, इसलिए मैं इसे पकड़कर आपके पास लाया हूँ। कौन हो तुम? मैं भगवान श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। तुमने अगर सीता माता को नहीं छोड़ा तो भगवान श्री राम लंका का अंत कर देंगे। तुम्हारा इतना दुस्साहस दुष्ट वानर! सैनिकों, इसके पूंछ में आग लगा दो। रूप धरि सिंह दिखावा, रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान पूरी लंका को तहस नहस करके समुद्र मार्ग से श्री राम के पास वापस आकर सीता माता का संदेश श्री राम को देते हैं। सीता का पता लगने का शुभ समाचार सुनकर श्री राम सहित सारी वानर सेना प्रसन्न हो जाती है। लंका पहुंचने के मार्ग में समुद्र पार करना एक कठिन
कठिन समस्या थी। श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र किनारे बैठकर उनसे मार्ग देने की प्रार्थना की, किंतु मार्ग न मिला। तब राम को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे सुखा देने की धमकी दी। हे समुद्र देवता, अगर आपने मुझे मार्ग नहीं दिया तो मैं इस पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। हे राजन, मुझे क्षमा करें। मैं आपको मार्ग तो नहीं दे सकता, लेकिन समुद्र पार जाने का एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। बताइए समुद्र देवता। सुग्रीव के सेनापति नल और नील ने अपने पिता से समुद्र पर सेतु बनाने की कला सीख रखी है, लेकिन ये बात आपको उन्हें याद दिलानी होगी। श्री राम नल नील के पास जाते हैं। नल, नील, आज्ञा प्रभु। हे विश्वकर्मा नंदन, आपने समुद्र पर मार्ग बनाने के इस महान शिल्प विज्ञान को क्यों छुपा रखा था? क्षमा करें प्रभु, हम अपने पिता की आज्ञा के अनुसार अपने गुणों को स्वयं नहीं बता सकते। हमें आशीर्वाद दीजिए प्रभु। समस्त वानर सेना की सहायता से हम शीघ्र इस पुल का निर्माण कर पाए। सेतु निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाता है। समस्त वानर सेना समेत श्री राम लक्ष्मण समुद्र के उस पार लंका पहुंचते हैं। मेरा आदि है अंत नहीं। पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे है और आकाश मेरी मुट्ठी में, क्योंकि मेरे पास शक्ति है और ये शक्ति है मेरा अभिमान। मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण। हे अभिमानी रावण, मैं सभी के सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि आज इस संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। इस संपूर्ण सृष्टि में कोई नहीं ऐसा जो रावण को मार सके। आक्रमण! तुम मुझे नहीं मार पाओगे वनवासी मानव, तुमने मेरी शक्ति देखी नहीं है। हे भगवान, रावण अत्यंत बलशाली है। उसे केवल ब्रह्मास्त्र से ही मारा जा सकता है। रावण की नाभि में अमृत का वास है। अगर आप उसकी नाभि में वार करेंगे तो रावण का वध हो जाएगा।
सच में इस एक्ट ने हमें ऐसा अनुभव कराया मानो हम त्रेता युग में पहुंच गए हो। यह प्रस्तुति अत्यंत भव्य और भावपूर्ण रही, जिसने रामायण के मूल्य हमारे दिलों में फिर से जीवंत कर दिए। A big round of applause for our wonderful performer who made us relive the Ramayana so beautifully. Now we have reached a very special moment. Throughout the program, we have celebrated the values of Ramayana, truth, courage, and devotion. But every celebration becomes even more meaningful when we hear blessing and guidance of someone we respect. आज हमारे बीच ऐसे माननीय चीफ गेस्ट पधारी हैं जिनका जीवन और अनुभव हम सबके लिए अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। उनकी बातें हम बच्चों के लिए मार्गदर्शन बनेगी और हमारे दिलों में एक नई रोशनी जगाएगी। So with heart full of respect, we invite our honorable chief guest to kindly share their thought and bless us with inspiring words. Thank you, ma'am, for your those valuable words of wisdom. Truly, your message has touched our spellbound, mesmerized, and awestruck. I don't know what words to use. What a beautiful performance. A big hand of applause for all the participants who made this event so memorable, so beautiful. Really, a wonderful presentation. A lot of hard work and efforts by the school staff. Really, you deserve much more than the appreciation that these people will be giving you. Dear parents, I really would take a moment to express my views about education. Nowadays, lots and lots of things are available, the best of education, the best of schools, and the best of teachers. But still, I don't know why sometimes we feel that we are not satisfied with the type of education our children are receiving. Because somewhere we feel कि कहीं ना कहीं somewhere हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, और वो कमी आप भी महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं नैतिकता का जो अभाव है वो हमारे बच्चों में दिखाई देता है। लेकिन आज जो प्रस्तुतियां हमने यहाँ पर देखी उनमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप जो पेरेंट्स यहाँ पधारे हैं और आपके बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ते हैं तो वो निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छे स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ नैतिकता को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि अन्य चीज़ों को। आजकल के जीवन में, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम बहुत कुछ चीज़ें करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने कल्चर से और अपनी रूट से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आज जब इन बच्चों को इतनी अच्छे श्लोक पठन करते देखा, बहुत ही खूबसूरत हनुमान चालीसा का यहाँ पे उन्होंने प्रस्तुति की, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज ये सब चीज़ें आजकल के बच्चों से थोड़ी दूर होती जा रही हैं। एक विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, जिसका मतलब ये है कि बचपन जो होता है वो सभी तरह की आदतों का एक निर्माण स्थल होता है, और वही आदतें उस व्यक्ति के साथ में जीवन पर्यंत रहती है। यदि बचपन में अच्छी शिक्षा दी जाए, चाहे वो विद्यालय से या हमारे घर से, तो जीवन में वही आदतें उस बच्चे का मार्गदर्शन करती हैं। तो आपके बच्चे का एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। किसी भी विद्यालय का जो क्वालिटी है वो उसके टीचर्स से दिखाई देता है, और निसंदेह आज की जो प्रस्तुति और जो मेहनत इन टीचर्स ने इन प्रस्तुति में डाली है वो ये बताता है कि ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, जो अपनी मॉरल जो एजुकेशन है उसके साथ साथ में रेगुलर एजुकेशन भी दे रहा है। तो एक बार उन सभी टीचर्स के लिए आप ज़ोरदार तालियां बजाएं जिन्होंने इन बच्चों को इतनी अच्छी तरह से तैयार किया। एंड थैंक यू अदिति मैम फॉर इन्वाइटिंग मी हियर ऑन दिस वेरी स्पेशल ओकेजन। दो इट वॉज अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, बट स्टिल मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस कार्यक्रम में आने के लिए। एक बार पुनः आप सब इतनी देर बैठे और इस कार्यक्रम को एंजॉय किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am, for your those
valuable words of wisdom. Truly, your message has touched our hearts and will stay with us for a long time. As we come to end of today's program, let us remember the message of Lord Ram, truth, courage and the victory of good over evil. आज भी हमारे अंदर एक राम है और एक रावण है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम किसे चुनते हैं. The Ramayana teaches us faith, simplicity and keeping our word our true strength. और जैसे श्री राम ने रावण का वध किया था, वैसे ही हम भी अपनी अच्छाइयों से अपनी बुराइयों पर विजय पाएंगे. Today's program becomes special because each one of you contributed to it. A big thank you to our chief guest for being here and sharing such thoughtful words. We are also truly grateful to our principal ma'am, all the teachers, the parents, and of course our wonderful children who made this day so lively. From this stage to every soul, one voice, one faith. Jai Shri Ram. Dear parents, tomorrow will be a holiday for students as they have done a lot of practice. उन्होंने बहुत सारी practice की है, तो tomorrow will be an off for students. Now you can collect your word. Thank you.